Okay, so in the last class, we were discussing about NPA, non-performing assets. So what is NPA? We all understand that non-performing asset is nothing, but it is a loan which is provided by the bank and the amount is not returned. It means the principal amount is not even returned as well as the interest is not returned to the bank. Okay, so when till 3 months, if this is going to be happen, अगर 3 महीने तक आपको पैसे नहीं मिलते, बैंक को पैसे नहीं मिलते हैं, तो उस अमाउंट को एज अ एनपीए डिक्लेयर कर दिया जाता है बैंक के द्वारा. ठीक है, सो 90 डेज जो है इसके लिए टाइम लिया गया है. जो बैंक है शुड ऑल्सो शुड बी प्रॉफिटेबल, बट एनपीए जो है वो कहीं ना कहीं इनके प्रॉफिट को खत्म कर रहा है, कम कर रहा है, राइट. So non-performing asset जो है that is not a good or desirable phenomenon and it is not at all acceptable by the bank. ये मतलब ऐसी चीज है जो बेसिकली आपके बैंक के हेल्थ को डिटोरिएट कर रहा है, खराब कर रहा है. ठीक है, it's like a cancer which is basically nowadays it is spreading in overall banking system in India. ठीक है, so जो RBI है that defined NPA इन मतलब एनपीए के लिए इन्होंने कुछ रेगुलेशंस और सर्कुलर्स भी लेकर आए हैं आपके आरबीआई. ठीक है, अब यहाँ पर इन्होंने कुछ जो आरबीआई ने बताया है, उन्होंने क्या क्या चीजों को बोला है कि दैट इज डिक्लेयर्ड एज अ एनपीए. इट्स नॉट अबाउट द लोन अमाउंट बट द स्मॉल शॉर्ट टर्म क्रेडिट अमाउंट इज ऑल्सो बेसिकली डिक्लेयर्ड अंडर द एनपीए. इफ द 30 डेज के लिए अगर आप 3 मंथ्स के लिए अगर आपके पैसे 3 मंथ्स में वापस नहीं आपने बैंक को किया, चाहे वो शॉर्ट टर्म अमाउंट शॉर्ट टर्म क्रेडिट हो, चाहे वो लॉन्ग टर्म क्रेडिट हो, ठीक है, दैट विल बी कंसिडर्ड एज अ एनपीए. सो यहाँ पर इंस्टॉलमेंट और इंटरेस्ट ऑफ प्रिंसिपल रिमेन्स ओवरड्यू फॉर कंटिन्यूअस पीरियड ऑफ मोर देन 90 डेज देन रिस्पेक्ट ऑफ द टर्म लोन. और यहाँ पर क्या क्या चीजें हैं, कौन कौन से टर्म्स हैं जो आप कौन कौन सी बेसिकली क्रेडिट फैसिलिटीज है जिसको हम एनपीए डिक्लेयर कर सकते हैं. In first case, an account is out of order with respect to cash credit or overdraft, CC or OD. So basically, we all know that sometime if we have a facility of the credit card, our credit card is linked with the saving account. ऐसा होता है ना कि सेविंग अकाउंट के साथ हमारा क्रेडिट कार्ड लिंक होता है. अगर उसमें एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन होता है कि अगर आपने 2 महीने तक पेमेंट अगर नहीं आया, तो एक 1.5 मंथ का ड्यूरेशन होता है 45 डेज का. अगर 45 डेज में आपका पैसा वापस बैंक को नहीं मिला तो 45 डेज के बाद वो ऑटोमेटिकली डिडक्ट कर लेते हैं. ऑटो डेबिट का भी फैसिलिटी है. अगर आपके अकाउंट में बिल्कुल भी पैसा नहीं है और ऐसी सिचुएशन में यू आर यूजिंग द ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और यू आर यूजिंग द क्रेडिट कार्ड फैसिलिटी एंड इफ यू आर नॉट एबल टू रिपे इट फॉर द 3 मंथ्स देन दैट अमाउंट इज ऑल्सो डिक्लेयर एज अ एनपीए. क्लियर? समझ में आया? Everyone? Yes, ma'am. Okay. Where are the other students? आ सकता है. That is a bill remaining overdue for more than period of 90 days. Installment or principal interest remain overdue for the two crop season. In case of the crop that grow for the short duration. Installment of interest or principal that is overdue for a crop season in case of the long duration crop. Or the amount of liquidity that is outstanding for the continuous period of 90 days. So for in all these situations, the NPA can be declared. Types of NPA we already discussed. What are the types of NPA, non-performing assets? What are the types of it? Turn on your camera, everyone. Standard asset, doubtful asset, loss asset. Okay. Substandard asset, doubtful asset, loss asset. Very good. Okay. Okay, ठीक है. So what are the different types of NPA? We already discussed substandard NPA, doubtful NPA, and the loss asset. Substandard NPA, the amount is overdue or equal to the 12 months. NPA that remain overdue to less than or equal to 12 months. Doubtful NPA when the substandard NPA जो है that is for equal to less than 12 months. और loss asset when the loss asset कब होगा? कौन बताएगा? राजवीर, रोहित, बताओ. अभिजीत. When the collateral don't equal to the debt value. Very good. का वैल्यू जितना भी है तो debt value का वैल्यू. When the collateral amount is not equal to the loan. हाँ,
when the collateral value is not equal to the amount which is taken as a loan. So sometimes this mistake is happened from the bank side, that they are not analyzing that the collateral value, what collateral value is exactly, and what amount we are paying or giving to the customer as a loan. Like loan के लिए 50 लाख रुपए दे दिया और जो value collateral है that is only for 10 to 15 lakh rupees. So in that situation, maybe if the amount is not repaid, if you try to even sell the collateral, you will not able to get the amount whatever you basically gave as a loan amount, right? So that is a loss asset. Okay. Norms of provisioning, factors which is contributed to NPA. That these points are clear to all of you. ये सारे points clear है? Factors. Yes, ma'am. What are the factors which is contributing to the NPA? Who is going to tell me about it? After that, we'll move toward the NRI account, non-resident of India account. Yes, Abhijit. Ma'am, properly inspect about the credit value, and the bank does not able to dismiss losses. वो बैंक लॉस को कवर करने का कुछ प्रावधान नहीं है. और his card fund raised by the promoter and it was used a different place also, unless place where don't use. The bank tries fund project in is not value visible. And जो बैंक का प्रोजेक्ट है जो जिसके लिए पैसा दिया गया वो यूज नहीं हो रहा है इस प्रोजेक्ट में. Very good. Yes, Rajvi. Ma'am, lack of information about the credibility of the person. Ma'am, बस इतना ही याद है. Wow. ठीक है, चलो. Ma'am, और सारा point cover. हाँ, ठीक है. हाँ. जो factors है which is contribute to non-performing assets, always write down all these points. जितने भी points हैं उसको जरूर लिखिए, ठीक है? So first thing, जो bank है, the banks lending to corporations or person. So NPA, I already told you that NPA is not only with the individual person, but that can be possible. That can be possible from the corporations or the company, right? Like the corporation, I gave you the example of the Videocon, that the NPA was how it was increased and what happened with the Videocon. That was one of the declining electronics company, and the ICICI provided the fund to that company. And what happened? The amount was never returned, and that amount is converted into the NPA amount, right? So Videocon is not an individual, but that was a company, right? So जो कंपनी है जो लेंड कर रही है, पैसा दे रही है कॉर्पोरेशंस को, पर्संस को, whose credit worthiness is not guaranteed and taking a lot of high risk. See, sometimes what happened that the bank is thinking that if we are giving the loan of 5 crore, 10 crore to the corporation, in return we get it, means a very high interest rate will be charged obviously. So in return we'll get more than that amount. So sometimes they are taking the risk, but this risk is not at all acceptable by the bank. ये risk इतना लेना ही नहीं चाहिए बैंक को कि corporations जो चल नहीं रहे हैं, properly work नहीं कर रहे हैं, या उनका credit worthiness या उनका financial statement, ये सब चीजों को हमें उनका analyze करना चाहिए. I guess you all are BCom student, तो आप लोगों को पता है financial statement का हर साल audit होता है ना? Yes, ma'am. हर साल ऑडिट होता है फाइनेंशियल ईयर में. तो जो आपका ऑडिट है हर साल फाइनेंशियल ईयर का, वो क्यों होता है? व्हाट इज द रीजन? बिकॉज वी जस्ट वांट टू नो दैट व्हाट इज द करंट सिचुएशन ऑफ द कंपनी, राइट? So if you are not aware about the situation of the company and you are providing the loan to them, so it means that you are taking the high risk. So whenever you are providing the loan amount, just try to understand the credit worthiness, like that person is able to give that money back or not. For example, if I am not doing job, just take it as an example. If I am not doing a job, can I get the loan of 5 lakh rupees? No, ma'am. Obviously no, because there is no guarantee that I will able to return that amount. Either the collateral is okay, but sometimes the credit worthiness is also important. Second thing, the bank are not able to diminish their losses by complete understanding of sufficiency of the bank in terms of loan or capital loss at specific time frame. So एक और भी reason है
कि जो बैंक है वो समझ ही नहीं पाता है कि उनका ये जो लॉस है दैट इज रिलेटेड विद द कैपिटल लॉस एंड एट द स्पेसिफिक टाइम। कुछ बैंक तो ऐसे हैं जिनका एनपीए ऑलरेडी हाई है एंड दे आर मूविंग टुवर्ड मोर एंड मोर एनपीए बिकॉज दे आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज द सिचुएशन ऑफ द बैंक राइट नाउ। ठीक है, थर्ड सिचुएशन, जो फंड है दैट आर बीइंग रीडायरेक्टेड एल्सवेयर बाय द प्रोमोटर्स ऑफ द कंपनी। ओके, हु आर द प्रोमोटर्स ऑफ द कंपनी? Who is starting the business, whose idea is there? So promoter जो है वो क्या करते हैं, पैसा तो ले लेते हैं लेकिन they are redirecting that amount to for the further work। अपनी कंपनी के अलावा वो कहीं किसी और जगह पे उसको रीडायरेक्ट कर देते हैं। ठीक है, so the bank is not able to track that where the fund is utilized। ठीक है, so the fund जो है वो रीडायरेक्ट हो जाता है कहीं और promoters के द्वारा of the companies। The bank that try to fund projects that are not viable, and sometimes the companies or the corporations are taking the money loan for project, and after that they understand that bank understand that that project is not viable at all and they gave money for that. So in that situation obviously NPA can be possible. Okay, next one is there is a lack of credit information in between the commercial bank, like we already told you, I already told you that what happened, क्या हुआ कि जैसे मान लीजिए कि हमने किसी भी बैंक से लोन लिया है ना, अगर if a person already took the loan from one bank and if that amount is not returned yet and that person is willing to take loan from the another bank, because of the lack of information between the commercial bank about these kind of NPA, what happened that they are easily able to get loan from the other bank. Like if the person is taking loan from SBI and उसको SBI को पैसा वापस नहीं किया, तो that person is going to take the loan from the HDFC, Kotak Mahindra. So this has happened because of there is a lack of information between the commercial bank. अगर ये चीज समझ आ जाएगा कि इस बैंक का पैसा इसने वापस नहीं किया है, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से फिर उसको कोई लोन नहीं देगा। लेकिन क्योंकि इंफॉर्मेशन ही नहीं है बैंक के पास कोई दूसरे कमर्शियल बैंक के बारे में एनपीए का, दैट इज वन ऑफ द रीजन दैट द एनपीए इज इंक्रीजिंग नाउअडेज, राइट? Non-efficient recovery of the debt from the overdue borrowers. There is no proper efficiency or tool which is utilized, or there is no proper strict action is taken by the bank. That is also one of the reasons for increasing NPA. What is the impact of the NPA on the operation? Rajvi, Utsav, everyone turn on your camera. Yes, Priya. Acha, Utsav, he already told me. Utkarsh. Yes. Yes, Priya. Ma'am, reduce the profit of the bank due to increase in the operating cost. Then? Ma'am, बस एक ही पॉइंट याद है। क्यों याद नहीं है तुम लोगों को? पढ़ते नहीं हो? Yes, Rohit. Ma'am, first is reducing the profit of the bank, and second is reducing the capital adequacy of the bank, and third is bank is focusing on credit risk instead of making profit. Very good. Yes, Ashutosh. Yes, ma'am. First, ma'am, reduce the profit of the bank. Second one is, ma'am, capital adequacy. Third one is, ma'am, reduce the बैंक और उस बैंक का लोन फैसिलिटी जो होता है, क्रेडिट वर्दिनेस और उसका क्या है स्टेबिलिटी, उसको मेंटेन करने के लिए। और मैम लास्ट वन होता है हमारा जो कंपनी का जो भी कंसंट्रेशन होता है या बैंक का, वो हमारे ये उसके क्रेडिट का कहा जाए तो उसके मैनेजमेंट पे जो भी उसका क्रेडिट रेशियो होगा उस पे ज्यादा फोकस करेगा वो। Very good. So basically NPA is deteriorating effect on the banking system, which I already told you that NPA is a cancer which is spreading all over the banking system in India. So the first point is reduce the profit of the bank. The bank's profit will be definitely declined. I told you na, the major revenue bank earns from the loan, right? And if this NPA will be happen, if you're earning 10 crore rupees and 5 crore rupees is NPA in your बैंक, डेफिनेटली इट रिड्यूस द प्रॉफिट। ओवरऑल प्रॉफिट 10 करोड़ था और 5 करोड़ ही रह गया क्योंकि एनपीए 5 करोड़ का। जब तक वो पैसे वापस नहीं आते या बैड डेट हो जाएंगे, क्या होगा कुछ पता होता नहीं है। तो इन शॉर्ट इट इज रिड्यूसिंग द प्रॉफिट ऑफ द बैंक। सेकेंड वन इज दिस रिड्यूसेस अ बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस कैपिटल एडिक्वेसी। तो कैपिटल एडिक्वेसी को भी कम कर रहा है।
ठीक है, एडिक्वेट कैपिटल जो बैंक को चाहिए ऑल द टाइम, उसको भी वो रिड्यूस कर रहा है, ठीक है, लिक्विडिटी को भी रिड्यूस कर रहा है बैंक, आप एक तरीके से देखिए, ठीक है। और नेक्स्ट है कि इसका बैंक जो है उसका ये इफेक्ट हो रहा है कि कहीं ना कहीं बैंक जो है नए लोन को देने से थोड़ा सा हिचक रही है, मतलब दे डोंट वांट टू गिव द फ्रेश लोन, means they are taking a long step for giving the loans nowadays because of the NPA. If the amount is very high, they are taking long time for that, right? So ये एक reason है। उसके बाद जो बैंक है, they also started concentrating on the management of the credit risk, but instead of making bank more profitable, यानी बैंक अपने प्रॉफिट को कैसे इंक्रीज करना चाहिए ये छोड़ करके they are basically analyzing the credit risk. So the focus is now, the direction of the bank is now changed because of the increasing NPA. ठीक है, next one is the fund happened to cause due to NPA. So these are the basically impact of the NPA on the banking system. What are the preventive measures are taken to prevent NPA? चलिए इस बार अभिषेक बताएगा। अभिषेक roll number 15. What was the question? Prevention. Preventive measures are taken to prevent NPA. First How you of can all, prevent NPA? Yes. First of all, to check the consumer civil score. Second one is to check the last loan amount which he has already taken. He done on the timely payment or not. That's not Okay, ठीक है, good. The first thing what preventive measures we can take for preventing NPA, the first point is the CIBIL score. Like that amount will, that particular score will tell you about the credit worthiness. Like if you can take the example of the credit card, अगर तुम लोग में से कोई credit card use करते हैं तो तुम लोग को पता होगा जितनी जल्दी आप उसका repayment करेंगे, just wait. Yes. So preventive measures taken by to preventing the NPA, we already discussed that. The CIBIL score. What is the CIBIL score? I already told you that. Like let's take the example of the credit card. Like if you are basically repaying the amount on the timely basis, there is a no due amount which is on the credit card, your CIBIL score will be high. ठीक है, so once the CIBIL score is maintained with the high number or high score, then it means your credit worthiness is high. So in that situation, the bank will willing to give you loan. But in just a vice versa case में क्या होगा? If your CIBIL score is not good, it means your credit worthiness is not good. You are not able to return the money in proper time. So if your money is always overdue, ठीक है, हमेशा अगर आपका पैसा overdue रहता है, क्रेडिट कार्ड का बिल overdue रहता है, then it is basically deteriorating the CIBIL score. And in long term, if you want to take the loan, no bank is going to give you loan on that basis, right? So यहाँ आजकल एक CIBIL score जो है ये provide करवाया जा रहा है, ठीक है, for the financing and loan person to the corporation and the individual person, ठीक है, clear? Yes, ma'am. Everyone? Okay. So CIBIL score is provided by the Credit Information Bureau. ठीक है, a Credit Information Bureau is licensed by Reserve Bank of India. ठीक है, CIBIL जो स्कोर है वो किसके द्वारा प्रोवाइड किया जाता है? क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो इंडिया, एंड दिस कंपनी इज लाइसेंस्ड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, और इन और भी कुछ कंपनीज हैं जो कि लाइसेंस है आरबीआई के द्वारा, और ये आपके क्रेडिट वर्दिनेस को कैलकुलेट करती है। जो मैंने बताया सिबिल स्कोर जो आता है, दिस इज प्रोवाइडेड बाय दिस। ठीक है, आई गेस दिस पॉइंट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्लियर? Yes, ma'am. Okay. So today we are going to even understand about the NRI account. ठीक है, NRI क्या है, NRI account क्या है, ठीक है, ओके। उसके अलावा आपका सेकंड क्या तरीका है? इट कॉम्प्रोमाइज और यूजेस फॉर डिफरेंट सेटलमेंट स्कीम। ठीक है, आप सेटलमेंट स्कीम्स वगैरह देख सकते हैं, आप अलग अलग सेटलमेंट स्कीम्स को आप लॉन्च कर सकते हैं बैंक फॉर डिक्रीजिंग एनपीए। उसके अलावा दे हैव नाउ अ डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म, उनके पास अब डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म भी है,
like uses for the debt recovery tribunal and lok adalat, which I told you that there are the lok adalat and they have a tribunal like debt recovery tribunal. ठीक है. Defaulter जो होगा, the defaulter's information should be actively circulated so that they cannot opt any other loans and finances from the other bank. So the information which I told you, that because of the lack of information, that a person is able to take loan from 4, 5, 8 banks, right? So it is required that जो भी defaulter है, defaulter वही person जिसने पैसे वापस नहीं किए हैं, उसके बारे में पूरा इंफॉर्मेशन आप सारे बैंक में डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, सारे कॉमर्शियल बैंक में, ताकि वो किसी और बैंक से पैसा जो है वो नहीं ले पाए लोन की तरह. ठीक है. नेक्स्ट वन इज यूजिंग द एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी सर्विसेज. एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी सर्विसेज को यूज करना, स्ट्रिक्ट एक्शन लेना एनपीए के अगेंस्ट. ठीक है. और लीगल रिफॉर्म्स जैसे बैंक्रप्सी कोड वगैरह जो है उसको ज्यादा से ज्यादा यूज करना, एंड सीडीआर कॉर्पोरेट डेब्ट रिस्ट्रक्चरिंग को यूज करना, and guidelines which is provided for the diversion and defaulter of the funds. These are the points which is basically help you to prevent the NPA. Okay, so I already told you the latest measures that are taken by the RBI to prevent NPA. अभी क्या लेटेस्ट मेजर्स चल रहा है. इससे पहले मैंने तुम लोग को कहा था कि मैं थोड़ा सा स्कीम्स ऑफ सेटलमेंट बताऊंगी, तो स्कीम्स ऑफ सेटलमेंट कर लेते हैं. उसके बाद अभी मैं बताऊंगी कि अभी हाल फिलहाल में आरबीआई ने क्या क्या मेजर्स लिए हैं एनपीए को कम करने के लिए. ठीक है. तो द फर्स्ट पॉइंट, द बैंक जो है उसने कुछ अपने ओन पॉलिसीज तो डिजाइन किया ही है ताकि वो रिकवर कर पाए पैसे को. उसके अलावा यहाँ पर आपके और आप एक और भी चीज है, द बैंक आर ऑटोनॉमस. ऑटोनॉमस का मतलब है दे हैव राइट. ऑटोनॉमस उनके पास इंडिपेंडेंटली राइट है फॉर डिजाइनिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग देयर ओन पॉलिसीज. यानी एनपीओ को लेकर के अगर वो चाहें तो अपने तरीके से डिजाइन कर सकते हैं, पॉलिसीज बना सकते हैं अपने तरीके से. ठीक है. मतलब इट्स नॉट दैट दे डोंट नीड टू फॉलो द कंप्लायंस व्हिच इज प्रोवाइडेड बाय आरबीआई, but they have right that they are able to implement or make the design of their own policies for the recovery and writing of the loan, incorporating compromises and negotiating the settlement. After the successful implementation of the insolvency and bankruptcy code of 2016, मतलब 2016 में यहाँ पे एक कोड आया था IBC. ठीक है. इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड. ये किस चीज के लिए आया था? इट बेसिकली केम फॉर द स्मॉल डेट, छोटे मोटे जो लोन के अमाउंट होते हैं. ठीक है. जब सक्सेसफुली इंप्लीमेंट हो गया आपका बैंक्रप्सी कोड 2016 में, स्मॉल डेट लाइक 1 लाख रुपीज कैन फिजिबली बी ब्राउट बिफोर द एनसीएलटी. यानी कि 1 लाख रुपए का अमाउंट जो है वो आराम से आप शो कर सकते हैं. कहाँ पर? कौन से ट्रिब्यूनल में? एनसीएलटी में. मैंने बताया था कि एनसीएलटी और एनसीएलटी दैट केम इन कंपनीज, वो मतलब कब इनफोर्स हुआ है? वो आया है आपकी कंपनीज एक्ट 2013 के बाद. ठीक है. तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि अब आपके यहाँ पर कुछ अदालत हैं जो बनाए गए हैं फॉर दिस सॉल्विंग दिस बैंक डेब्ट और फॉर दिस एनपीए. फर्स्ट वन इज लोक अदालत. अच्छा, लोक अदालत क्या है? लोक अदालत विच इज फॉर्म फॉर डीलिंग विद द स्मॉल एनपीए. अच्छा, जो स्मॉल एनपीए है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट जो स्मॉल है, कितने रुपीज तक? 20 लाख रुपीज तक जो होगा, जिसका रेंज आपके 20 लाख रुपए तक है. 20 लाख से कम की बात नहीं हो रही, 20 लाख रुपए तक की बात हो रही, अप टू. ठीक है. यहाँ पर ये लोक अदालत में केस जा सकता है. दे कंप्लीट इंश्योर द स्पीडी रिकवरी एज वेल एज वेल ऑफ द ऑथोरिटी. मतलब जल्दी से जल्दी ये स्पीडी रिकवरी आपका लोक अदालत करवाएगा. द लोक अदालत यूजुअली नॉट वेरी हार्श ऑन द डिफॉल्टर. यानी जिन्होंने पैसा नहीं दिया है उनके लिए कोई हार्श स्टेप वगैरह ऐसा कुछ नहीं लिया जाएगा. जो and are cheaper and easier ways of resolving the dispute related to the loan. तो लोक अदालत जो है, they are not taking a very strict action or harsh action, they are not taking against the defaulter, but they are basically trying to resolve the problem, speedy recovery of the amount up to 20 lakh rupees. These things are done by in the lok adalat. So I guess this point is clear कि लोक अदालत क्या करता है. 20 लाख रुपए तक का अगर आपका नॉन परफॉर्मिंग एसेट है तो ऐसे केस में आप लोक अदालत जा सकता है कोई भी बैंक, और वो स्पीडी रिकवरी कराएगा आपके अमाउंट का. क्लियर है?
और साथ साथ में they will also not very harsh and they are not taking the strict action against the defaulter, but they will try to resolve the dispute related to the loan. ठीक है, so they will try to resolve the dispute related to the loan. Okay, next one is NCLT and NCLAT. तो इसका जो नाम है ये पहले कुछ और था, इसका नाम था BIFR. तो BIFR क्या है? बॉडी ऑफ इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंस रिकंस्ट्रक्शन. तो BIFR जो था अब इसका नाम बदल दिया गया और NCLT हो गया है, और जो एपेलेट ऑथोरिटी ऑफ इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन था AAIFR, तो उसको अब हम लोगों ने कर दिया NCLAT. ठीक है, नेशनल कंपनी लॉ एपेलेट ट्रिब्यूनल. ठीक है, सो ये अब जो था इसका नाम चेंज कर दिया गया, NCLT और NCLAT हो गया है. चलिए, तो अब यहाँ पर क्या है, दिस वाज बीइंग डन एज BIFR वुड नॉट मीट द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रिवेंटिंग द इंडस्ट्रीज दैट आर अनाउंस्ड टू बी सिक. तो मतलब BIFR जो था उसका जो मैकेनिज्म था दैट वाज नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग. ठीक है, so that's why it is now basically converted to the NCLT. and यहाँ पर जो है आपका मतलब कोई भी litigation that can be completed within the 330 days, मतलब 1 साल के अंदर अंदर कोई भी केस बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा NCLT में. ठीक है, selling the NPA to all the other banks, there is a provision for the bank. अभी एक provision है बैंक के लिए, for a bank to sell its NPA to some other bank only if this has to remain in the book of the selling bank for more than 2 years. यानी अगर वो चाहे, मतलब NPA जो है आप सेल कर सकते हो दूसरे बैंक को अगर आप चाहो, लेकिन वो तभी पॉसिबल है जब 2 साल तक उस पर्टिकुलर एंट्री जो है आपके बुक में होगी उसकी. फैक्टर्स दैट अफेक्ट द एक्सेप्टेंस ऑफ नेगोशिएशन प्रपोजल बाय बैंक. अब कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स है जो इफेक्ट करेंगे एक्सेप्टेंस ऑफ नेगोशिएशन प्रपोजल ऑफ. अच्छा, नेगोशिएशन पता है ना? यस मैम. ये पॉइंट क्लियर है? ये लाइन पॉइंट समझ आया? फैक्टर्स दैट अफेक्ट द एक्सेप्टेंस ऑफ नेगोशिएशन प्रपोजल बाय अ बैंक. ये कह रहा है कि वो सारे फैक्टर्स जो आपके नेगोशिएशन मतलब प्रपोजल को जो भी इफेक्ट करेंगे वो क्या क्या चीजें हैं. पहला तो है कि डॉक्यूमेंटेशन बाय अ बैंक, मतलब डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए, सिक्योरिटी वैल्यू एंड सेल्स वैल्यू होना चाहिए, एबिलिटी ऑफ बैंक टू सेल, और बैंक के पास मतलब आप किस तरीके से दूसरे बैंक को सेल कर सकते हो, कैसे आप निगोशिएट कर सकते हो, कैसे ट्रांसफर कर सकते हो NPA. तो उसमें कौन कौन से फैक्टर्स है जो निगोशिएशन को इफेक्ट करेगा. आई बात समझ में? मैंने बोला था ना इससे पहले वाला पॉइंट कि NPA को अगर आप चाहो तब सेल कर सकते हो दूसरे बैंक को. अगर आप चाहो, NPA मतलब कि दूसरा बैंक जो है they are going to take the money back, right? So if you want you can sell the NPA to all the other bank. अब दूसरे किसी भी बैंक को, सारे बैंक को बेच सकते हो. ठीक है, सेल कर सकते हो, लेकिन कुछ फैक्टर्स है जो इफेक्ट करेगा आपके निगोशिएशन को यानी ट्रांसफर को दूसरे बैंक को. और वो क्या क्या चीजें हैं? पहली बात कि आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए उस NPA का. ठीक है, तो द डॉक्यूमेंटेशन बाय अ बैंक. ठीक है, सेकेंड, और डॉक्यूमेंटेशन आपको पूरा प्रॉपर देना भी पड़ेगा आपको अनदर बैंक को. Second is security value and the sales value. What is the security amount you have for that NPA? यानी कि NPA अगर किसी को आपने लोन दिया तो उसके पास से आपने कुछ कोलेटरल सिक्योरिटी लिया होगा, तो सिक्योरिटी वैल्यू क्या है और सेल्स वैल्यू क्या है ये देखना पड़ेगा. सिक्योरिटी वैल्यू में भी हो सकता है कि उसका वैल्यू जब दिया हो तो 50 लाख हो और फिर राइट नाउ इट्स वैल्यू 70 लाख, तो नाउ 20 लाख उसका सेल वैल्यू हो गया. एबिलिटी ऑफ बैंक टू सेल, बैंक की एबिलिटी क्या है सेल करने की. द सोर्स एंड एबिलिटी टू द बोरोवर, द वल्नरेबिलिटी ऑफ गारंटर बोरोवर. तो ये सारी चीजें, पॉलिसी ऑफ द बैंक, सक्सेस रेट ऑफ द बैंक. So all these factors basically affecting the negotiation proposal by a bank. ठीक है, इसके अलावा मैंने बताया था कि RBI आजकल कौन सा प्रिवेंटिव मेजर्स ले रहा है उसके बारे में देखते हैं. चलिए, so what are the preventive measures that are taken to prevent NPA? The first one is taking a person's or corporate एक मिनट, ये तो हो गया था ना. अच्छा, measures are taken by the RBI to prevent NPA. तो सबसे पहला है द कम्युनिटी ऑफ लेंडर शुड एडहेयर टू स्ट्रिक्ट टाइमलाइंस ऑफ द रिजोल्यूशन प्लान. अगर अभी इन्होंने हाल फिलहाल में भी कुछ और भी एक्शंस लिया है, पहली चीज कि जो कम्युनिटी है लेंडर्स का, यानी कि जो भी पैसा प्रोवाइड कर रहे हैं बैंक, वो स्ट्रिक्ट टाइमलाइंस को फॉलो करेंगे. सेकेंड चीज, द लेंडर्स मस्ट बी गिवन सर्टेन इंसेंटिव फॉर एग्रीइंग टू रिजोल्यूशन प्लान दैट आर अंडर वे.
लेंडर्स जो हैं वो अगर चाहें तो कुछ इंसेंटिव भी प्रोवाइड कर सकते हैं अगर ये रेजोल्यूशन काम करेगा तो। There should be initiative to improve the present restructuring procedure, restructuring of large values. Next है आपका non-cooperative borrowers. The future borrowings for the non-cooperative borrowers with the lender must be necessary to make more expensive in resolution. So in short, there are multiple leverage buyouts, the private equity, and the loss is being disclosed. The lenders must necessarily be allowed to spread the losses on the scale of at least 2 years. So these are some points. I think these points are not necessary, but these are the measures which is taken by RBI to reduce the NPA. So I guess these are more than enough for the NPA. Clear? जितनी भी चीजें करवाई सब क्लियर हो गया सबको। एनपीए कैसे हम रिड्यूस कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, लोक अदालत, एनसीएलटी, एनसीएलटी, एवरीवन ओके। नेक्स्ट वन में लिखिए एनआरआई। अच्छा एनआरआई कौन होते हैं कोई बताएगा? हु आर एनआरआई? मैम नॉन रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया। वो तो फुल फॉर्म है, लेकिन होते कौन है, कब कहलाते हैं वो पर्सन एनआरआई? बताओ। 4 साल में 182 डेज बाहर रहेंगे तब। वेरी गुड। A non-resident of India is an Indian citizen or a person of Indian origin residing outside India. यानी कि वैसे पर्सन जिसका ओरिजिन इंडिया से है, उनके फादर मदर, उनके ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर इंडिया से हैं, लेकिन वो पर्सन कहाँ रह रहा है? वो बाहर रह रहा है, इंडिया में नहीं रह रहा है, he is residing outside the India. That person is known as NRI, non-resident Indian. ठीक है? A resident is a citizen who stays in India for at least 182 days in a financial year. Just opposite बोल दिया था तुमने अभी जी। कोई भी इंडिया का रेसिडेंट तभी होगा जब वो इंडिया में एटलीस्ट 182 डेज रहे। अच्छा 182 डेज का मतलब कितना महीना हुआ? 6 month। हाँ 6 month। 6 month, अराउंड 6 month। तो रेसिडेंट कोई भी इंडिया का तभी बन सकता है क्योंकि एटलीस्ट वो 6 महीना फाइनेंशियल ईयर में, इन अ फाइनेंशियल ईयर 6 month 182 डेज, मतलब एटलीस्ट 182 डेज का मतलब है मिनिमम 182 दिन। इससे ज्यादा भी वो रह सकता है, लेकिन वो तभी वो एनआरआई कहलाएगा, मतलब एक रेसिडेंट होगा, सॉरी तभी वो एक रेसिडेंट होगा, एक सिटीजन होगा इंडिया का। इंडियन सिटीजन कौन होंगे? जो कम से कम 182 डेज फाइनेंशियल ईयर में इंडिया में रहते हैं। ठीक है? एनआरआई जो है दे हैव टू मेंटेन द बैंक अकाउंट इन इंडिया इन द फॉर्म ऑफ रुपी और द फॉरेन करेंसी अकाउंट। यानी कि अगर वो एनआरआई है तो वो इंडिया में अगर उनका अकाउंट है तो हाउ दे विल ओपन इट, किस तरीके से, या तो रुपी रहेगा उनके अकाउंट में या तो फॉरेन करेंसी। The letter can be maintained only by the RBI authorized dealer or bank। और NRI का जो अकाउंट होता है that is not managed by every bank, but that is only managed by या maintained by the RBI authorized bank। या RBI authorized जो banks और dealers है वही उनके अकाउंट को क्या करेंगे? मैनेज करेंगे। So types of account, अब यहाँ पर देखते हैं कि कौन कौन टाइप के NRI के अकाउंट होते हैं। ठीक है? तो सबसे पहला होता है आपका एनआरई अकाउंट। देखिए सब लोग देखिए, यहाँ पर मैं लिख रही हूँ फर्स्ट पॉइंट, व्हाट इज द टाइप ऑफ द एनआरआई अकाउंट? फर्स्ट वन इज एनआरई अकाउंट। अच्छा एनआरई अकाउंट क्या है? नॉन रेसिडेंट एक्सटर्नल रुपी अकाउंट, नॉन रेसिडेंट एक्सटर्नल रुपी अकाउंट, इसको हम कहते हैं एनआरई अकाउंट, एनआरई अकाउंट। सेकेंड पॉइंट में क्या होगा? एनआरओ। सेकेंड पॉइंट में क्या होगा? एनआरओ, नॉन रेसिडेंट ऑर्डिनरी रुपी अकाउंट। ऊपर में था नॉन रेसिडेंट एक्सटर्नल रुपी अकाउंट, यहाँ पर है नॉन रेसिडेंट, बस ई की जगह ओ में ऑर्डिनरी लगा लो, ऑर्डिनरी रुपी अकाउंट। थर्ड पॉइंट, थर्ड में कौन टाइप है? दैट इज एफसीएनआर अकाउंट, एफसीएनआर अकाउंट, एफसीएनआर अकाउंट। सबको समझ में आ रहा है ये सारा पॉइंट? एनआरई, एनआरओ, एफसीएनआर अकाउंट। एवरीवन टर्न ऑन योर कैमरा।
Everyone turn on your camera. Everyone. So what is NRE? NRE account, NRO account, FCNR का लिखना, foreign currency non-resident account, foreign currency non-resident account, NRO के non-resident ordinary rupee account, NRE में लिखिए non-resident external rupee account, rupee, रुपया मत लिख देना, रुपया पाकिस्तान का करेंसी है, ठीक है, रूपी इंडिया का करेंसी, रूपी इंडिया के करेंसी को हम बोलते हैं, ठीक है, चलो, ओके, सो एनआरओ अकाउंट क्या है? तो एनआरआई जो है, मतलब नॉन रेसिडेंट इंडियंस जो है, वो एनआरओ अकाउंट को ओपन करा सकते हैं बाय पुटिंग और बाय थ्रू द बोनाफाइड, मतलब बोनाफाइड को यूज करके रूपी के ट्रांजैक्शन के लिए दे कैन बेसिकली ओपन द एनआरओ अकाउंट, ठीक है। अच्छा, एनआरई अकाउंट मैंने नहीं बताया, चलो ठीक है, एनआरओ बता देती हूँ, फिर एनआरई बता देती हूँ। So NRIs can open the NRO account for the purpose of putting through the bona fide transaction in rupees. So they require bona fide for that. Balance in the NRO account is generally non-repatriable. ठीक है? However, the fund in the NRO account can be remitted abroad subject to such limit condition that is prescribed by the RBI directive. एक मिनट। ठीक है, सो व्हाट इज द हियर, मैं क्या बता रही थी आपको, एनआरओ अकाउंट, राइट। सो एनआरओ अकाउंट जो होता है, फॉर दैट बोनाफाइड इज रिक्वायर्ड, ठीक है, बोनाफाइड की जरूरत पड़ती है। जो भी एनआरआई के अकाउंट में, मतलब एनआरओ अकाउंट में जो भी एनआरआई के पैसे होंगे वो नॉन रिपेट्रिएबल होते हैं। रिपेट्रिएबल का मतलब जिसको हम दूसरे कंट्री में नहीं भेज सकते, स्वदेश भेजने योग्य, ठीक है, नॉन रिपेट्रिएबल होते हैं, यानी कि हम उसको दूसरे कंट्री में पैसे को नहीं भेज सकते। लेकिन हाउएवर फंड्स इन एनआरओ अकाउंट कैन बी रेमिटेड अब्रॉड subject to such limit and condition as may be prescribed by the RBI directive at the time of the repatriation. और जो NRO account balance need to be used only for payment within India in rupees. यानी ये समझ में तो तुम लोगों को बिल्कुल क्लियर आ गया होगा कि जो NRIs हैं जिसका NRO अकाउंट ओपन है इंडिया में, वो जो पैसे उसके अकाउंट में है वो पैसे को आप इंडिया से बाहर दूसरे कंट्री में नहीं भेज सकते। द अमाउंट कैन नॉट बी ट्रांसफरेबल, ठीक है, दैट इज, इसको हम बोलते हैं नॉन रिपेट्रिएबल। रिपेट्रिएबल का मतलब होता है कि जो पैसे को भेजा जा सकता है, तो दैट इज नॉन रिपेट्रिएबल, जिसको हम भेज नहीं सकते हैं। लेकिन कुछ कंडीशंस हैं जो आरबीआई ने दिया है कि कौन कौन से कंडीशन में आप इस पैसे को बाहर भेज सकते हो, तो उस कंडीशन को यूज करके देयर आर सम एक्सेप्शनल केसेस व्हेन वी आर एबल टू ट्रांसफर द फंड टू द आउटसाइड द कंट्री। बट जो एनआरओ अकाउंट में जो पैसे हैं वो ज्यादातर रुपीस की तरह, रूपी, नॉर्मल रूपी, जो हम ऑल ओवर इंडिया में कोई भी ट्रांजैक्शन करने के लिए यूज कर सकते हैं, लेकिन उसको दूसरे कंट्री के लिए हम भेज नहीं सकते हैं। क्लियर हो गया एनआरओ अकाउंट एवरीवन? यस मैम। ठीक है, नाउ एनआरई अकाउंट। यस आशुतोष? मैम, जो पर्सन वीजा लेकर वहाँ काम करने जाता है 2 साल 3 साल के कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे, तो उसका भी एनआरओ अकाउंट या एनआरई अकाउंट खुलता होगा? हाँ बिल्कुल। और एक और भी चीज है कि अगर आपका अकाउंट है, मैं तो इंडिया के कॉन्सेप्ट में बता रही हूँ कि इंडिया में क्या क्या अकाउंट ओपन होता है। अब दूसरे कंट्री में हो सकता है अलग अलग पॉलिसीज होंगी, बट इंडिया के कॉन्सेप्ट में मैंने बताया कि एनआरआई का क्या सीन है, नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडियन, मतलब जो इंडिया से बाहर रहते हैं उसके लिए मैंने बताया। और यहाँ पर जो एनआरओ अकाउंट है ना, उसके पैसे को ट्रांसफर किया जा सकता है, कुछ कंडीशंस अप्लाइड है, वो भी आरबीआई के द्वारा। तो खैर, लेकिन ज्यादातर केस में एनआरओ के पैसे जो होते हैं वो एप्लीकेबल नहीं होते हैं दूसरे कंट्री में ट्रांसफर होने के लिए। आशुतोष क्लियर है? आशुतोष? यस मैम। ओके, तुम्हारी आवाज बहुत कम आ रही है मुझे। मैम, मेरा ईयरफोन खराब हो गया है। ओके,
अब एनआरई अकाउंट क्या है? तो एनआरई अकाउंट इज अ रूपी अकाउंट मेंटेन्ड विद द बैंक. फंड्स फ्रॉम द एनआरई अकाउंट आर फ्रीली रिपेट्रिएबल. अब यहाँ पर देखिए बिल्कुल ऑपोजिट केस है कि एनआरई अकाउंट जो है इसमें आपके पैसे रुपीस के फॉर्म में रहेंगे. किस फॉर्म में रहेंगे? इंडियन करेंसी के फॉर्म में रहेंगे, लेकिन उस पैसे को आप इजिली ट्रांसफर कर सकते हो दूसरे कंट्री में. दैट अमाउंट इज रिपेट्रिएबल. ठीक है. interest credit to the account is exempt from the tax in hand of the NRI. और यहाँ तक कि जो इंटरेस्ट क्रेडिट हो रहा है उस अकाउंट के बेसिस पे जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो नॉन टैक्सेबल है. ठीक है. टैक्स से उसको एग्जाम्प्ट कर दिया गया है, नहीं टैक्सेशन खत्म कर दिया गया है. और एनआरई अकाउंट जो है वो ओपन किया करवाया जाता है. दैट कैन बी ओपन विथ फंड रेमिटेड फ्रॉम अब्रॉड और जनरेटेड इन इंडिया. यानी दूसरे जगह पे दूसरे कंट्री में इंडिया से हम फंड को इजिली रेमिट कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं. ठीक है. तो फॉर दैट देयर इज एनआरई अकाउंट. एनआरओ और एनआरई में डिफरेंस समझ में आया? Yes, ma'am. ओके. नेक्स्ट वन इज एफसीएनआर अकाउंट. एफसीएनआर अकाउंट. ठीक है. अब एफसीएनआर अकाउंट क्या है आपका भाई? तो दैट इज अ फॉरेन करेंसी नॉन रेसिडेंट अकाउंट. ठीक है. तो एफसीएनआर अकाउंट में क्या होता है कि इस तरीके के जो अकाउंट है एफसीएनआर अकाउंट जो होंगे दैट कैन बी ओपन ओनली फॉर्म ऑफ टर्म डिपॉजिट ऑफ 1 to 5 years. यानी 1 से 5 साल के लिए एफसीएनआर अकाउंट जो है वो ओपन हो सकते हैं. जैसे टर्म लोन कैसे होते हैं वैसे ही दिस कैन बी ओपन फॉर द टर्म डिपॉजिट. डिपॉजिट जो होंगे दैट कैन बी मेड इन फ्रीली कन्वर्टेबल फॉरेन करेंसीज. तो जो भी अमाउंट होगा वो फ्रीली मतलब बिना फ्रीली दैट इज इजिली कन्वर्टेबल, मतलब आप फॉरेन करेंसी में उसको कन्वर्ट भी करा सकते हो. Only NRIs can be joint holders in an FCNR account. और FCNR अकाउंट में कोई भी इंडियन पर्सन और एक NRI पर्सन दोनों का अकाउंट नहीं हो सकता. FCNR जब भी होगा दोनों NRI होंगे. क्या होंगे? दोनों NRI होंगे. क्लियर हो गया? क्लियर? ओके. ठीक है. नेक्स्ट वन, यहाँ पर कुछ ध्यान देने वाली चीजें हैं कि जैसे कि जो आपका एफसीएनआर अकाउंट होता है वो सिर्फ 1 से 5 साल के लिए ही ओपन होता है. दूसरी चीज डिपॉजिट आप इजिली कर सकते हो और ये इजिली कन्वर्ट भी हो जाएगा फॉरेन करेंसी में. इस अकाउंट में रुपी वाला टेंशन खत्म. ठीक है. और सिर्फ एनआरआई में सिर्फ ज्वाइंट होल्डर्स जो होंगे वही एफसीएनआर अकाउंट को जो है उसी के वो ज्वाइंट होल्डर्स जो भी होंगे दे बोथ शुड बी एनआरआई. और जितने भी लोग उसके ज्वाइंट होल्डर्स है सब एनआरआई होने चाहिए. अब यहाँ पे कुछ चीजें हैं जो ध्यान देने वाली है. व्हेन अ रेसिडेंट इंडियन बिकम्स एन एनआरआई, अगर कोई इंडिया का पर्सन है, मान लो एग्जांपल में अभी अभिजीत है, अब ये चला जाएगा कहीं फॉरेन कंट्री में. ठीक है. तो पहले तो ये रेसिडेंट था इंडिया का, अब ये चला गया दूसरे कंट्री में. अब ऐसे सिचुएशन में जब कोई रेसिडेंट इंडियन बन जाता है एनआरआई, तो ऐसे केस में ही और शी नीड्स टू इन्फॉर्म द बैंक टू कन्वर्ट द एग्जिस्टिंग सेविंग बैंक अकाउंट टू एनआरआई अकाउंट. अब अभिजीत के पास जो सेविंग अकाउंट है, मान लीजिए इसका एसबीआई में अकाउंट था, तो अब चूंकि अब एनआरआई बन गया, अब दूसरे कंट्री में जा रहा है पढ़ने के लिए या फिर किसी भी चीज के लिए, जॉब करने के लिए, है ना पॉसिबल अभिजीत? है ना? तो ऐसे सिचुएशन में आपका जो भी सेविंग अकाउंट इंडिया में अवेलेबल है उस सेविंग अकाउंट को आपकी जिम्मेदारी है कि उसको आप एनआरओ अकाउंट में कन्वर्ट करा लो. कौन से अकाउंट में कन्वर्ट करा लो? एनआरओ अकाउंट में उसको कन्वर्ट करा लो. ठीक है. और एक और चीज ध्यान देने वाली बात है कि एन एनआरआई रिटर्निंग टू इंडिया कैन ओपन द रेसिडेंट फॉरेन करेंसी टू होल्ड बैलेंस दैट ही और शी हेल्ड इन एनआरई और एफसीएनआर अकाउंट. तो अगर एनआरआई जो है अगर वो इंडिया रिटर्न हो रहा है तो वो चाहे तो वो रेसिडेंट मतलब दे कैन ओपन रेसिडेंट फॉरेन करेंसी, मतलब इंडिया से रिलेटेड जो रेसिडेंट फॉरेन करेंसी में, मतलब वो जितने भी बैलेंसेस है जो भी उसने होल्ड कर रखा है एनआरई और एफसीएनआर अकाउंट में, दैट कैन बी ओपन एज अ रेसिडेंट फॉरेन करेंसी अकाउंट. सो इन शॉर्ट ये कुछ आपके टर्म्स से रिलेटेड विद द एनआरई और एनआरओ अकाउंट. तो ये सारे जो अकाउंट्स थे. अब इसके अलावा कुछ और भी चीजें देख लेते हैं कि क्या क्या और भी फैक्टर्स हैं कि किस तरीके से बैंक जो है वो इस तरीके के अकाउंट को हैंडल करती है, मैनेज करती है. ठीक है. और इसका पूरा गाइडलाइन जो है एनआरओ अकाउंट ये सब जो है ना दैट इज प्रोवाइडेड बाय द फेमा फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट गाइडलाइन. और आरबीआई स्टेट्स दैट एनआरई अकाउंट तभी अकाउंट शुड बी ओपन बाय एनआरआई देमसेल्फ. और जो एनआरआई अकाउंट ओपन होगा ना
एनआरआई का कोई भी अकाउंट ओपन होगा ना, वो कोई इंडियन पर्सन ही करा सकता है, जैसे अभिजीत के पेरेंट्स नहीं करवा सकते, वो अभिजीत को खुद करवाना पड़ेगा, ठीक है। ऑलवेज रिमेंबर, इट डज नॉट बी परमिट होल्डर ऑफ पावर ऑफ अटॉर्नी टू ओपन दिस अकाउंट, यानी इसके लिए किसी के पास भी पावर ऑफ अटॉर्नी नहीं है दैट दे आर अलाउड टू ओपन द अकाउंट ऑफ द नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। ओके, so in the next class we are going to understand that what is the government account and how it is handled by the बैंक, ठीक है। सो एनआरआई का किस तरीके से यहाँ पर अकाउंट जो है वो हैंडल किया जाता है, एक मिनट, एनआरआई का अकाउंट, हाँ, एनआरआई का जो अकाउंट है वो किस तरीके से हैंडल किया जाता है, वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड अबाउट दैट इन नेक्स्ट क्लास। किसी बैंक का एग्जाम्पल ले लेंगे, जैसे आईसीआईसीआई है ना, दे आर अलाउड टू बेसिकली हैंडल द एनआरआई अकाउंट, so we are going to take the example of one or two banks that how they are managing it. Clear हो गई बात, समझ में आया सबको? Everyone? Yes, ma'am. कितने तरीके के Yes, ma'am. अकाउंट्स होते हैं? NRO, Right. NRO, हाँ? non-resident of ordinary, non-resident of external, non-resident, non-repeatance, and foreign currency account. गुड। अच्छा, एनआरओ और एनआरई के डिफरेंस प्रिया बताएगी, बताओ बेटा। मैम एनआरओ नॉन रेपिटेटिव अमाउंट है, उसमें हम लोग ट्रांसफर नहीं कर सकते किसी अदर कंट्री में, और एनआरई जो है वो फ्रीली ट्रांसफरेबल है। उसके लिए एक वर्ड था, कौन सा वर्ड था? मैम रिपीटेटिवली, रिपेट्रेबल, रिपैट्रिएबल, रिपैट्रिएबल, रिपैट्रिएबल लिख लेना आप लोग। ओके, so and what about the FCNR account? Who is going to tell me that what happened with the FCNR account? आशुतोष, चलो बताओ बेटा जरा। मैम ये 1 to 5 years के लिए ओपन किया जाता है और इसमें इजीली ट्रांसफरेबल होता है जो भी अमाउंट है। गुड, चलिए, तो आई गेस एनपीए इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस मैम। अच्छा, लोक अदालत में क्या होता है? लोक अदालत मैम लोक अदालत में जो भी 20 अप टू 20 लाख का जो एनपीए है वहाँ पे वो डील होता है, और वहाँ पर स्पीडी रिकवरी होता है विदाउट टेकिंग एनी स्ट्रिक्ट एक्शन। गुड, यस अभिजीत? मैम वही सेम 20 लाख। एग्जैक्टली। अच्छा, एनसीएलटी और एनसीएल 20 लाख एग्जैक्ट अमाउंट थोड़ी होता है, अप टू 20 लाख होता है ना। यस, अप टू 20 लाख तो मतलब 20 लाख रुपए तक, मतलब 1 रुपए से 20 लाख रुपए तक वाला सीन है, ठीक है। चलिए, एनसीएलटी और एनसीएलटी का पहले का नाम क्या था? BFIR, AAFIR। चलिए, ओके, सो इन द नेक्स्ट क्लास वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड अबाउट द गवर्नमेंट अकाउंट, और जो एनआरआई अकाउंट वगैरह हमने जो किया है ना, इसको थोड़ा सा और डिटेल में करेंगे। एक दो बैंक का हम लोग केस स्टडी ले लेंगे, जैसे कि आईसीआईसीआई का मैंने बताया था ना कि आईसीआईसीआई किस तरीके से डील करती है एनआरआई के साथ। तो वी आर गोइंग टू basically understand about those terms. If the question will be arise, then you can easily write about it, ठीक है? मैम इसका बुक में दिए हुए हैं एनआरआई का नॉन रेसिडेंट सिलेबस में है। हाँ, तो मुझे तुम लोग को कुछ टाइप्स ऑफ सर्टिफिकेट डिपॉजिट, ट्रेजरी बिल्स, ये सब क्या होता है, मैं सोच रही हूँ एक दिन वो सारे और भी इंस्ट्रूमेंट्स जो यूज होते हैं, जैसे बॉन्ड्स क्या होता है, गवर्नमेंट बॉन्ड्स क्या होता है, तो ये सब चीजें हम लोग एक दिन कर लेंगे। और मैं सोच रही हूँ कि एक दिन हम लोग वो टॉपिक भी कर लेते हैं, डीमैट अकाउंट, डीमेटेरियलाइज अकाउंट, मतलब जिसमें हम शेयर्स और सिक्योरिटी में डील करते हैं, तो डीमैट अकाउंट के बारे में भी पढ़ लेंगे। क्लियर है? यस मैम। ठीक है, चलिए, ओके, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट क्लास। और डीमैट अकाउंट, some instruments like certificates of deposit and treasury bills, bonds, government bonds, और ये एनआरई और गवर्नमेंट अकाउंट, ये सब कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। ओके, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट क्लास।